آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں ملتان میں سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی کو فاؤنڈر اینڈ چیئرمین میڈم زاہدہ کے پاس۔ میرا نام جیسے کہ زاہدہ امید قریشی ہے اور مجھے تقریباً میں 5 ماہ کی تھی جب مجھے پولیو ہوا تھا، تو مکمل پیرالائز تھی میری لائف۔ تو لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، میری مدر نے مجھے اسکول میں ایڈمیشن کروایا، آلدو کہ اس وقت اسکول بھی کوئی داخلہ نہیں مجھے دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو معاشرتی سماجی رکاوٹیں مسائل تھے ان سب کو عبور کرتے ہوئے کالج کمپلیٹ کیا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا، وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس کو کمپلیٹ کیا، اکنامکس میں ماسٹرز کیا بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے، اور اس کے بعد پھر زندگی کو ایک اور طرح سے دیکھنا شروع کیا، اور جو چیلنج اپنی زندگی میں دیکھے، جو چیلنج اپنے بھائی کی زندگی میں دیکھے، ان سب کو سمرائز کیا اور سوسائٹی فار اسپیشل پرسنس کی 2007 میں بنیاد رکھی۔ ابھی آپ نے کہا میڈم کہ آپ نے میٹرک جو کیا وہ کرالنگ کرتے ہوئے کیا، تو تب تک آپ ویل چیئر پہ نہیں تھی؟ نہیں، کبھی ویل چیئر کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا ذہن میں کہ ویل چیئر بھی ہوتی ہے۔ تو فرسٹ ٹائم جب ویل چیئرس کا اس وقت پتہ چلا جب گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین میں میرا FSC میں ایڈمیشن ہوا، حالانکہ زمین پہ کرالنگ کر کے میں چلا کرتی تھی، لیکن جب ویل چیئر پہ بیٹھنا شروع کیا تو ویل چیئر زیادہ رسپیکٹیبل لگی، زیادہ آرام دہ لگی۔ وہ یوں کیونکہ زمین پہ چلنے تھے، میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے تھے، چھالے پڑ جاتے تھے، پاؤں پہ مطلب ایک یہاں سے خراب ہو جاتے تھے، تو بہت ساری انفیکشن اور ڈیزیز تھی جو صرف کرالنگ کرنے کی وجہ سے مجھے افیکٹ کر رہی تھی۔ لیکن جب ویل چیئر پہ بیٹھی تو اس سے موبلٹی میری بڑی آسان ہوئی، تو ہر جگہ کالج میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا میرا بڑا آسان ہو گیا، اور ایک لائف جو تھی نا ایک نئی طرح سے نظر آنے لگی، زندگی انڈیپینڈنٹ۔ بچپن سے بہت ساری باتیں، بہت سارے رویے دیکھ کے میں آگے گرو کر رہی تھی، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا تھا خوف کہ ان لوگوں کو کوئی مستقبل نہیں ہے معذور افراد کا، لیکن میری مدر نے کہا نہیں، وہ زندگی نہیں دینی، یہ زندگی دینی کہ تعلیم سے اپنی زندگی کو بنائے۔ تو الحمدللہ میری والدہ کا خواب پورا ہوا، میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا، بلکہ ٹاپ بھی کیا، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، تو وہاں سے میں نے پڑھ لکھ کے پھر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی۔ افراد بامعذوری کی زندگی میں جو کمی ہے وہ رائٹس کی ہے، ان کے حقوق کی ہے، تو کیوں نہ ان کے حقوق کے اوپر کام کیا جائے۔ مجھے پتہ چلا تعلیم بھی ہمارا حق ہے، روزگار بھی ہمارا حق ہے، اور یہ ساری سہولتیں جو سب لوگوں کے لیے وہ بھی ہمارا حق ہے۔ تو یہ اس سوچ کے ساتھ پھر سوسائٹی فار اسپیشل پرسنس کو بنایا، اور اپنے ہی جیسے ہم خیال معذور افراد کو اس میں شامل کیا اور اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو 2006 سے آپ کے ادارے کی شروعات ہوئی جی، جو ادارے کا جو پہلا جو مشن تھا جس سے آپ کی شروعات ہوئی وہ کیا پروڈکٹ تھی؟ کیا وہ ویل چیئر سے ہی آپ نے سٹارٹ کیا تھا کہ جو ویل چیئر کسٹمائز بنا کے دینی ہے؟ اس وقت بھی سب سے پہلا جو قدم اٹھایا تھا وہ ویل چیئرس کا ہی تھا، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ 12 ٹرائی سائیکلیں تھیں معذور افراد کے لیے، تو وہ 12 ٹرائی سائیکل سے سٹارٹ لیا تھا۔ ہم نے معذوری اپنے اندر نہیں دیکھی، معاشرے کے اندر دیکھی، جب ریمپس نہیں تھے، ٹوائلٹ ایکسیسیبل نہیں تھے، ٹرانسپورٹ ایکسیسیبل نہیں تھی، لوگوں کے رویوں میں معذور افراد کے لیے کوئی پلاننگ نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے سرچ کی تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ ہر ایک چیز کی کیمپین بنا دی۔ اس طرح سے ہم نے یہ کیمپین جب سٹارٹ کی تو اس کو بہت زیادہ مطلب کہ ان اپریشیٹ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے نوٹیفیکیشن جاری کیا فرسٹ، جس میں تمام بینکنگ سیکٹر کو ایکسیسیبل کیا گیا۔ لاہور کی میٹرو بس ایکسیسیبل ہوئی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو پیشنٹ ویل چیئر آ رہی تھی چائنا سے امپورٹ ہو کے، وہ سرجیکل کی شاپ تک محدود تھی، لیکن ایک بڑی تعداد میں افراد بامعذوری کی بڑی تعداد آئسولیٹ تھی اور مجبور ہے گھر میں اپنی ایک قید کی زندگی گزارنے پر بغیر ویل چیئرس کے، تو پوری زندگی میں وہ ایک ویل چیئر نہیں حاصل کر پائے۔ تو ہم نے پھر یہ کسٹمائزیشن ویل چیئرس کا کام سٹارٹ کیا ود دی کانسیپٹ آف میڈ ان پاکستان۔ ہم نے کہا پاکستان کے اندر ہی ویل چیئرس بنے، افراد بامعذوری خود بنائے، اور معذور افراد کی ضرورت کے مطابق ویل چیئر ہونے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے ٹائپ آف ڈسیبلٹی۔ جی، جیسے کہ پولیو ہے، اسپائنل کارڈ انجری ہے، جن کو کیا کہتے ہیں سیریبل پالسی ہے، CP ہے، جن کی باڈی مکمل پیرالائز ہوتی ہے، تو ان کی باڈی میں اسٹفنس ہوتی ہے، وہ سادہ ویل چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ویل چیئر کا جو سائز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو 12 سائز کی ویل چیئر دینی تو وہ 18 سائز کی ویل چیئر پہ کیسے بیٹھے گا، کس طرح سے وہ موو کرے گا، اور بغیر کوشن کے ویل چیئر ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ تو ہم ویل چیئرس کو بہت کمفرٹیبل ڈسیبل پرسن کی ڈسیبلٹی کے مطابق اور اس کے سائز اور اسپیسیفکیشن کے مطابق ویل چیئر ڈیزائن کر کے اس کو مینوفیکچر کر کے اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہم ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ واحد مینوفیکچرنگ سیٹ اپ ہے
जहाँ पे ना सिर्फ कस्टमाइजेशन के साथ व्हील चेयर्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बल्कि माजूर अफराद को अब तक तकरीबन 250 माजूर अफराद को हमने व्हील चेयर बनाने की तरबियत दी है, टेक्निकल ट्रेनिंग दी है, 6 माह के तरबियती कोर्स। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये व्हील चेयर सिर्फ उनके घर तक महदूद ना रहे, इनकी लाइफ को इकनॉमिकली भी एम्पावर्ड करें। तो उसके लिए फिर हमने उस तरह का एक मॉडल बनाया है एम्प्लॉयमेंट व्हील चेयर्स के नाम से, जिसमें एक स्पेसिफिक ट्रे लगी होती है। उस ट्रे पे वो कुछ भी चीज़ रख के बाहर गली में सेल आउट कर सकता है आराम से ईजिली, और फिर वो रिमूवेबल भी होती है। उसने घर में आना तो वो उसको रिमूव करे और अपनी व्हील चेयर को यूज़ कर ले। ख़ास तौर पे फीमेल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बड़ा हेल्प करती है वो व्हील चेयर। उसमें यह है कि वो अपने घर में जैसे सब्ज़ी बनाना है, खाना खाना है या कुछ पढ़ना लिखना है, तो वो स्टे पे रख के आराम से इजीली मैनेज। चेयर जितनी भी है वो सारी की सारी आपके उसी सेटअप के अंदर ही बन रही है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है? जी बिल्कुल, वन विंडो ऑपरेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज हमारे से रब्ता करते हैं, हम उनको रजिस्टर्ड करते हैं व्हील चेयर्स के लिए, फिर उनकी मुकम्मल असेसमेंट होती है, नीड असेसमेंट। वो नीड असेसमेंट के बाद उनका मुकम्मल फॉर्म फिल किया जाता है, और वो फॉर्म फिल करने के बाद फिर हम उसकी व्हील चेयर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको हम वो व्हील चेयर देते हैं, और फिर इसको एंड यूज़र ट्रेनिंग भी देते हैं कि हाउ टू यूज़, किस तरह से आपने इस व्हील चेयर को इस्तेमाल करना है, किस तरह इसको सेव कर रखना है, और किस तरह से इसको आपने यूज़ करना है इसको, ताकि उसकी सेफ्टी, उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़े। तो इन तीनों चीज़ों के साथ फिर हम उसको एक लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं, लाइफ टाइम गारंटी देते हैं उस व्हील चेयर्स की, कि जब तक ये व्हील चेयर आपके साथ है आपने हमसे राब्ते में रहना है, ताकि इस व्हील चेयर को सेव किया जा सके और आपकी लाइफ को कंफर्ट किया जाए। लोग हमें बताते हैं कि हमारी व्हील चेयर का इस तरह से यहाँ से डैमेज हुआ है, तो हम उनसे व्हील चेयर की पिक्चर मंगवाते हैं। तो एक तो हम व्हील चेयर रिपेयर करने के बाद दोबारा उनके इस बात को उनको गाइड करते हैं कि आपने आइंदा व्हील चेयर जब यूज़ करनी है तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है, और उसकी व्हील चेयर रिपेयर करके दे देते हैं। हमारे प्रोग्राम की वसात से कोई एक डिसेबल आदमी कोई वीडियो को देखता है और वो व्हील चेयर चाहता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो क्या करे? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जितने भी 5-6 हज़ार माजूर अफराद को हमने व्हील चेयर दी है वो इसी तरह ही दी है। हमने कभी किसी व्हील चेयर को, यूज़र को व्हील चेयर सेल नहीं की। अच्छा, इसका मतलब ये कि जितनी आपकी व्हील चेयर जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आगे जा रही है उन लोगों के लिए? उन लोगों को बिल्कुल। ठीक, तो उसका प्रोसीजर क्या है, ज़रा वो बताइए। हमारे पास जो इस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं व्हील चेयर्स बनाने के लिए, तो हमारे पास लोकल यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट हमारे साथ राब्ते में होते हैं, तो उनको फिर हम बताते हैं कि सर इस तरह से ये अफराद बम माजूरी हैं और ये नीडी हैं, इनको हमने व्हील चेयर देनी है। तो वो फिर उसकी कॉस्ट बेयर करते हैं, मटेरियल कॉस्ट और कुछ उसके ओवरहेड्स बेयर करते हैं। तो हम लोग व्हील चेयर्स बना के फिर आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर दोबारा व्हील चेयर्स का मटेरियल लेके जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ व्हील चेयर बना रहे हैं वो दोबारा रिसाइकल हो जाता है। तो इस तरह से अफराद बम माजूरी को भी रोज़गार मिल रहा है और यूज़र को जो है वो उसको व्हील चेयर मिल जाती है। इसमें कोई गवर्नमेंट के इदारे भी आपको सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इसी तरह कस्टमाइज व्हील चेयर्स के ऊपर पाकिस्तान बैतुल माल ने पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया कि अफराद बम माजूरी को अब चाइना की व्हील चेयर नहीं जाएंगी और गलत व्हील चेयर नहीं जाएंगी, और इनको अच्छी और मेड इन पाकिस्तान और इफ़ेक्टिव व्हील चेयर्स हम उनको देंगे। तो सबसे पहला इनिशिएटिव पाकिस्तान बैतुल माल ने लिया। उसके बाद अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एनेबल के नाम से अपनी एक ऐप लॉन्च की है, अपना पूरा पोर्टल बनाया है, और उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको कस्टमाइज व्हील चेयर्स मिलेगी, और लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट उसकी कॉस्ट बेयर करेंगे, और सोशल वेलफेयर उसको आगे मतलब कि प्रोवाइड करेगा। जितनी पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, इसके अंदर ये जो रैंप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आप ही की तरफ से आइडिया है? जी हमारा आइडिया था। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मैम, एक तो ये होगी ना इंडिविजुअल, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आपकी अभी तक की क्या पार्ट? जी बिल्कुल, जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो जनरल व्हील चेयर है वो बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि हॉस्पिटल में व्हील चेयर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और फिर हॉस्पिटल की नीड भी उसी तरीके से कस्टमाइज़ है। बिल्कुल ठीक। तो उस तरह की कस्टमाइज व्हील चेयर भी हमने हॉस्पिटल्स के लिए बनाई है, और जो कि बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। यहाँ पे मुल्तान कार्डियोलॉजी ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, और हर जगह हॉस्पिटल में हम वो व्हील चेयर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और वो हॉस्पिटल के लिए बहुत कारआमद है। तो वो मॉडल भी हमने इसके अलावा भी कोई काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे? पाकिस्तान में मुख्तलिफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ काम कर रहे हैं, जिनको हमने ट्रेनिंग्स दी है, वो जाके अपने एरियाज़ में थोड़ा बहुत उन्होंने इस काम को स्टार्ट ले लिया, क्योंकि इंस्पायरेशन मिल गई, मोटिवेशंस मिल गई यहाँ से। हमारा मकसद पूरा हो गया। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है हर गांव देहात की सतह पर पहुँचे, और वहाँ पे छोटे छोटे चैनलाइज करें, ताकि उनको दूर का सफ़र करने की बजाय उनके डोर स्टेप पे उनको सहूलत मिले। तो कभी मुल्क के बाहर कोई अब्रॉड से भी आपको कभी किसी ने कांटेक्ट किया फॉर कस्टमाइज्ड व्हील चेयर्स के लिए? जी, बहुत से अफराद हमें रब्ता करते हैं जो ख़ुद बाहर जॉब कर रहे होते हैं, तो उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए जो व्हील चेयर चाहिए होती है, या अपनी फैमिली मेम्बर्स को कोई व्हील चेयर चाहिए कस्टमाइज्ड, तो वो हमसे रब्ता करते हैं। जिस तरह से
वक्त के साथ जूते का साइज़ बदलता है, कपड़ों का साइज़ बदलता है, इसी तरह व्हील चेयर का भी साइज़ बदलता है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से फिर उसको नई व्हील चेयर के उसको दी जाती है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग जो है अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल को चेंज करने का हर 4 साल 5 साल के बाद सोचते हैं। बिल्कुल, जैसे गाड़ियों के मॉडल चेंज होते हैं, मोटरसाइकिल्स के मॉडल चेंज होते हैं, जूते के डिज़ाइन चेंज होते हैं, इसी तरह से अफराद बम माजूरी के लिए व्हील चेयर चेंज होती है। तो राजनपुर को जब हमने विज़िट किया तो वहाँ पे सारे लोग खैमों में थे, वहाँ पे डिसेबल्स और ओल्ड एज पर्सन भी काफ़ी थे, तो उनको बहुत ज़्यादा मसला था टॉयलेट का। तो हमने फिर डबल सोचा, हमने कहा इनको ऐसी व्हील चेयर दी जाए कि इनका टॉयलेट का मसला भी हल हो जाए और इनको इनकी मोबिलिटी भी बेहतर हो और इनकी हेल्थ भी बेहतर हो। तो फिर हमने वो टॉयलेट व्हील चेयर अरेंज की, 650 टॉयलेट व्हील चेयर फिर हमने उनको राजनपुर में दी। और वो डिसेबल पर्सन जो ये कहते थे कि हमारे घर वाले भी हमारे पास नहीं बैठते, वो कहते हैं कि तुम तो गंदे हो, तुम्हारे में से स्मेल आती है, तो कहते हैं हम तो कुछ ही नहीं कर पाते थे, ना घर में हम खाना खा सकते थे कोई हमारे साथ बैठ के, ना हमसे कोई बातचीत किया करता था। लेकिन अब मैं अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठ के अपने आप को नीट एंड क्लीन रखता हूँ। लड़कियां कहती हैं अब हम नीट एंड क्लीन रखते हैं, हम घर में अपना आटा भी गूंद रहे हैं, रोटियां भी पका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वरना कल तक हमें दूर रखा जाता था इन सारी चीज़ों से कि तुम तो गंदे हो। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, और उसकी दो बड़ी वजूहत है। एक पहली वजह तो यही है उनके पास व्हील चेयर्स नहीं है, दूसरी वजह यह है कि उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एनवायरनमेंट एक्सेसिबल नहीं है, तीसरा ये कि उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वो ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। तो इन तरह की चीज़ें एजुकेशन के लिए मतलब उनके पास बेसिक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो डिसेबल पर्सन थोड़े बहुत पढ़ लिखे हैं, समझदार हैं, तो उनको फिर इस तरह से मेडिटेशन करके दे देते हैं कि वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ के सारा काम मैनेज करें। तो मैडम हमने आपके अवार्ड्स देखे हैं, तो माशाल्लाह जितनी तादाद में वो अवार्ड हैं, तो बजाय इसके मैं कुछ और पूछूं, मैं सीधा इस पे आता हूँ कि इनमें बता दीजिए कि कौन कौन सा अवार्ड मिसिंग है जो अभी तक आपको नहीं मिला हुआ। जी बस ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और दोस्तों की मोहब्बतें हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में मुझे सिद्धार्थी अवार्ड मिला है, फातिमा जुना बेस्ट वुमेन अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स की तरफ से मुझे अवार्ड मिला है, और इसके अलावा भी मैंने दुनिया के 11 कंट्रीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और 2 बार अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। एज ए पर्सन यूएनओ में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और इस वक्त को गवर्नमेंट के साथ भी कहीं पे अटैचमेंट है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं टेक्निकल एडवाइज़र हूँ, उनकी फोकल पर्सन हूँ। बहुत कुछ मुझे आज आपसे सीखने का मौका मिला। तो एक लास्ट क्वेश्चन, अभी तक आपका एक सफ़र है, इतनी ज़िंदगी आपने व्हील चेयर पर गुजारी है, कोई चीज़ अपनी अगर आप लाइफ में पूरा देखें और आपको लगता हो कि कोई चीज़ जो आप अभी तक हासिल नहीं कर सके, या कोई आपके ड्रीम्स या कोई आपका ख्वाब हो, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा मुझे को। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो डिसेबिलिटी है, इसने मुझे बहुत एक अच्छी रिस्पेक्टेबल लाइफ दी है। तो लोगों के लिए भी मैं यही एडवाइस करती हूँ कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, और अल्लाह के से बड़ा कोई रिवार्ड नहीं है, तो अल्लाह ही से रिवार्ड लेना हर एक चीज़ का। तो बस यही मेरी एडवाइस है सब दोस्तों के लिए कि कोई भी चीज़ गैर ज़रूरी और नामुकम्मल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं, टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं और सबके काम आएँ। आज सिस्टर ज़ाहिदा से मुलाकात के बाद मुझे ज़िंदगी की एक नई हकीकत पता लगी है। आप यकीन करें, आज मेरे तासुरात ऐसे हैं कि मुझे लग रहा है कि माजूर ये नहीं, माजूर हम लोग हैं। ये तो लोगों को चलना सिखा रही हैं, हम लोग हैं कि जिन्होंने माजूरों को बंद करके रखा होता है। मुझे लगता है कि हमें अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द लोगों में जितने भी माजूर, जितने भी स्पेशल लोग हैं, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट जोन देना है। हम अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिल को हर 5 साल 7 साल के बाद बदलने का सोचते हैं, तो हमें ये सोचना है कि उनकी व्हील चेयर या उनको जो भी कोई डिसेबिलिटी है, उनके इक्विपमेंट को हमने कैसे अपग्रेड करना है। ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है जो कि आज सिस्टर ज़ाहिदा से मुल्तान में इनके दायरे में बैठ के मुझे मुलाकात के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ है। आप यकीन करें कि मुझे लग रहा है कि आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा यहाँ आकर मैंने चलना सीखा है।